Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shahid Raza, Assistant Professor, University of Education, Lahore. Welcome to join my class. My dear students, as you know, we are discussing the course Introduction to Guidance and Counseling. And this is the course of B.Ed Honors, and the course code is EDUC 3142. As you know that we have discussed a lot of topics related to this course, Introduction to Guidance and Counseling. So today we are starting to discuss another important topic which is very useful and will be informative for all of you. And our today's topic is guidance services. So in this course, we will explain in detail 7 services of guidance. So let's discuss. Number 1, orientation service of guidance. Then comes testing service. After that, educational and occupational services. And we will also discuss counseling services. There is placement service, follow-up services, and number 7, research and evaluation services. So we will discuss in detail about all these 7 services of guidance in our coming lectures, but today we are going to discuss first service of guidance, which is at number 1, and that is orientation service. So what actually is orientation service of guidance? It is generally noticed that when students shift from one school to another, they find difficult to immediately accept and adjust to the new environment. आप जानते हैं कि जब बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं, एक अदारे से दूसरे अदारे में जाते हैं, इवन कि एक क्लास से प्रमोट होकर दूसरी क्लास में जाते हैं, तो ये जो शिफ्टिंग होती है उनकी एक अदारे से दूसरे में, एक स्कूल से दूसरे में, एक क्लास से अगली क्लास में, तो एक्चुअली दिस शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस may cause a lot of problems, and those problems may be related to environment, related to surroundings and so on. तो ये जो प्रॉब्लम पेश आते हैं, जो प्रॉब्लम सामने आते हैं एडजस्टमेंट के हवाले से, एडजस्ट नहीं हो पाते स्टूडेंट्स, तो इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करते, फ़ौरन उस माहौल को, फ़ौरन उस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते। तो यहाँ नई एनवायरनमेंट होती है, नया माहौल होता है, तो इस नए माहौल में देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट मे कम। सो फॉर दिस रीज़न orientation service of guidance is must required. So it should be provided appropriately and accordingly to overcome all these problems and issues of adjustment and so on. So an entry in a non-familiar or new situation may likely lead to certain adjustment problems among the students. तो बहुत सारे adjustment के problems हो सकते हैं different situations में, तो इन तमाम सिचुएशंस को डील करना और इन प्रॉब्लम को सेटल करना, ये ज़िम्मेदारी है एक इंस्टीट्यूशन की और साथ साथ टीचर्स की भी। तो इस हवाले से ओरिएंटेशन सर्विस प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड टू ओवरकम दिस ऑब्स्टिकल, द ओरिएंटेशन सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज्ड स्पेशली टू फैमिलियराइज द स्टूडेंट्स विद द न्यू सराउंडिंग्स एंड देयर बाई अडेप्ट देमसेल्व्स एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। तो इस ऑब्स्टेकल्स को, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो हर्डल है, ये जो मुश्किल सूरत हाल सामने आई है, जिसमें एक बच्चे के लिए एडजस्टमेंट का मसला हो रहा है, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन सर्विस ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? ताकि आप बच्चों को फेमिलियराइज़ कर दें, बच्चों को पता चल जाए कि नई सराउंडिंग्स क्या हैं, न्यू एनवायरनमेंट क्या है, उन्होंने किस तरीके से इस नई एनवायरनमेंट में आगे बढ़ना है और एडजस्ट करना है। तो इस हवाले से ओरिएंटेशन सर्विस ऑफ गाइडेंस बहुत ही ज़रूरी है। So hence it is always advisable to begin
एन एजुकेशनल कोर्स और प्रोग्राम विद एन ओरिएंटेशन एक्टिविटी। और ये रिकमेंड किया जाता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब भी आप कोई एजुकेशनल कोर्स स्टार्ट कर रहे हों या कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हों, तो उस वक्त बच्चों को, स्टूडेंट्स को और न्यू कमर्स को, नए आने वालों को, प्रमोट होने वालों को, तमाम स्टूडेंट्स को ओरिएंटेशन एक्टिविटी करवाएं। और इस ओरिएंटेशन में वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर कमिंग इन फ्यूचर related to students, all the co-curricular activities, games, library facilities, laboratory facilities, IT facilities, all of them you have to explain in detail and to share with your students, and this sort of activity is referred as orientation service. So what is orientation service? The orientation service is provided to the students, those who are newcomers. अभी हम बात कर रहे थे कि नए बच्चे आ रहे हैं, उनको आप प्रोवाइड कर रहे हैं this sort of service which is orientation. आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको अपने अदारे के बारे में, अपने स्टाफ के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में, प्रोग्राम, एग्जामिनेशन, को करिकुलर एक्टिविटीज़, लेबॉर्ट्रीज, लैब्स, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट इंस्टीट्यूट, उसके बारे में आप बता रहे हैं, बच्चों को डिटेल में बता रहे हैं। एंड दोज हु गो टू न्यू क्लास और न्यू कोर्स इन द स्कूल सेटअप, और वो बच्चे भी जो एक क्लास से नई क्लास में पहुँचे हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। सो इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट द स्टूडेंट्स दोज हु जॉइन फर्स्ट टाइम in the school or get promotion for higher classes are heterogeneous in nature. ये मुख्तलिफ जगह से स्टूडेंट्स आते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होगी, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से इश्यूज़ हो सकते हैं, एडजस्टमेंट के न्यू एनवायरनमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो दैट्स वाई ओरिएंटेशन सर्विस इज़ वेरी नेसेसरी टू प्रोवाइड। सो एज दे आर फ्राम डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स, उनकी फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, मुख्तलिफ फैमिली बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, एंड दे आर फ्राम डिफरेंट सोशो इकनॉमिक स्टेटस। इवन कि कोई अमीर घराने से है, कोई गरीब घर से है, कोई देहात से है, कोई शहर से है। सो दे आर कमिंग फ्राम डिफरेंट सोशो इकनॉमिक स्टेटस। तो आपने इस सोशो इकनॉमिक स्टेटस को सामने रख कर ओरिएंटेशन प्रोवाइड करनी है, उनके प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, उनको सुनना है, उनको सजेशन देनी है, उनको रास्ता बताना है कि वो किस तरीके से आपके अदारे में आगे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो किससे शेयरिंग करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसको कांटेक्ट करेंगे। सो ऑल दैट यू हैव टू शेयर विद योर स्टूडेंट। सो दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड फ्रॉम डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड दे हैव डिफरेंट इंटरेस्ट्स, एप्टीट्यूड्स एंड स्किल्स। उनकी एबिलिटी लेवल मुख्तलिफ हो सकता है। आप जानते हैं कि देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट फ्राम अदर इंडिविजुअल। हर फर्द दूसरे से मुख्तलिफ है। सो यू हैव टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड, कीप इन माइंड ऑल दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स। उनकी एबिलिटीज़ का फ़र्क क्या है, उनकी दिलचस्पी, इंटरेस्ट लेवल में फ़र्क होगा, उनके एप्टीट्यूड में फ़र्क होगा, उसने सोचने का अंदाज, स्टडी हैबिट्स, इवन स्किल्स, ईच एंड एवरीथिंग में बी डिफरेंट, वो मुख्तलिफ हो सकती है। तो आपने इसी हवाले से उनको ब्रीफ करना है, उनको आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है, इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये जो काम आप कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन सर्विस। सो ओरिएंटेशन सर्विस इज नॉर्मली मेंट फॉर स्टूडेंट्स टू enable them to know school courses, rules and regulations, different facilities given to the students by school and to know the clear image of the school. तो इसमें एक्चुअली क्या करते हैं आप कोर्सेज़ के बारे में बताते हैं, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं, अदारे के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यू हैव टू फॉलो, और ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेबॉर्ट्री है, लैब्स है, एग्जामिनेशन सिस्टम है। वो आईटी में कंप्यूटर फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाहते हैं। सो ऑल दिस यू हैव टू डिस्कस विद योर स्टूडेंट्स। और क्लियर इमेज स्कूल की आपने शेयर करनी है, उनको बतानी है, स्टूडेंट्स को, न्यू कमर्स भी और वो भी जो एक क्लास से दूसरी क्लास में पहुँचे हैं।
So on the same line, school also keeps record of the students about their biodata, including identification, socio-economic background, capabilities, capacities and abilities, and interest for courses, etc. तो जहाँ स्टूडेंट्स को, बच्चों को, न्यू कमर्स को ज़रूरत होती है ओरिएंटेशन सर्विस की, को इन्फॉर्मेशन गेन करें, वो इन्फॉर्मेशन हासिल करें, मालूमात लें, वहीं पे ये एक स्कूल के लिए, एक अदारे के लिए भी ज़रूरी है ओरिएंटेशन सर्विस। वो इसलिए कि एक अदारा रिकॉर्ड रखना चाहता है उन तमाम स्टूडेंट्स का जो उसके अदारे में आए हैं और जो न्यू हैं, उनका बायोडाटा क्या है, उनकी आइडेंटिफिकेशन, कहाँ से आए हैं, बैकग्राउंड क्या है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनकी एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, ऑल दीज थिंग्स। तो इस हवाले से वो मुकम्मल रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो इसलिए उसे भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो ओरिएंटेशन सर्विस जहाँ स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही है, वहीं पे ये एक अदारे के लिए भी बहुत यूज़फुल है और टीचर्स के लिए भी, ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ अपने स्टूडेंट्स को और उसके मुताबिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सामने रखते हुए they have to teach them accordingly. So it assists new students to know the informations about school, its history and traditions, rules and regulations, its strength and weaknesses, facilities available for them, etc. अभी हम बात कर रहे थे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, हिस्ट्री क्या है, ट्रेडिशंस क्या चलते हैं स्कूल में, इसके बारे में बच्चों को बताएंगे, फैसिलिटीज़ के बारे में शेयर करेंगे, ताकि उनको क्लियर हो कि आपके अदारे में किस तरीके से उन्होंने रहना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो उन्होंने हासिल करनी है। सो इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू एडजस्ट विद स्कूल सिचुएशंस एंड इनेबल स्टूडेंट्स टू डेवलप एकेडमिक स्टैंडर्ड, पर्सनल क्वालिटीज़, हाई मॉरल वैल्यूज़ एज वेल एज एथिकल स्टैंडर्ड्स। आपने उनको ये बताना है कि मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं यहाँ की, यहाँ के एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, बच्चों ने किस तरीके से इन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है और फॉलो करना है। So this service actually assisting students to achieve success in academic life by learning to study carefully, developing interest in the study, taking examinations and notes sincerely and utilizing time properly. तो बहुत सारी चीज़ें आप शेयर करेंगे बच्चों के साथ इस ओरिएंटेशन सर्विस में कि वो स्टडी में इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं, इम्तिहानात का सिलसिला क्या है, नोट टेकिंग कैसे करनी है, वो अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं पॉजिटिव वे में। सो ऑल यू हैव टू शेयर एंड डिस्कस विद योर स्टूडेंट्स in orientation service, in orientation activity. So this service also helps students to know the almost all useful information regarding library, hostels, classrooms, laboratories, workshops, gardens, playgrounds, and different teaching aids and other facilities available in that institution. तो ये तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं इसके हवाले से आपने मुकम्मल ब्रीफ करना है, मुकम्मल उनको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना है और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है ताकि उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो दिस सर्विस असिस्टिंग स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड रेमेडियल रीडिंग, लैंग्वेज प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स एंड डिफरेंट फाइनेंशियल हेल्प बाय स्कूल्स। तो आपने ये भी शेयर करना है कि लैंग्वेज प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट फाइनेंशियल हेल्प स्कूल की तरफ से अगर कोई है, कोई स्कॉलरशिप है, तो वो किसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरीके से वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट और किस तरह के स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं आपके अदारे में, तो इस हवाले से भी आपने उनको बताना है। सो इट आल्सो असिस्ट स्टूडेंट्स टू डेवलप सोशल एडजस्टमेंट एबिलिटीज़। वो मुआशरे में अपना बेहतरीन और पॉजिटिव रोल कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, वो अच्छे शहरी कैसे बन सकते हैं, आपने सिटीज़न एजुकेशन के बारे में बताना है, एंड वेल एडजस्टमेंट इन डिफरेंट स्कूल एक्टिविटीज़ एंड फैसिलिटीज़। और जो स्कूल में एक्टिविटीज़ हैं और फैसिलिटीज़ हैं उसमें बेहतरीन तरीके से कैसे एडजस्ट कर पाएंगे वो स्टूडेंट्स, इस हवाले से भी आपने ब्रीफ करना है। तो फाइनली आप ये सारा काम कैसे करेंगे, ये ओरिएंटेशन एक्टिविटी आप जो प्रोवाइड करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करेंगे बच्चों के साथ, तो किस चीज़ की ज़रूरत होगी आपको, इस हवाले से हम देख लेते हैं। द ओरिएंटेशन कोर्सेज में बी ऑफर्ड सिस्टमेटिकली
to students through certain activities. इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको ओरिएंटेशन दे सकते हैं। वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? सच एज इशूइंग प्रिंटेड मटेरियल एंड हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन। आप उनको प्रिंटेड मटेरियल दे दें, उनको पम्फलेट्स दे दें, उनको ब्रोशर्स दे दें जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हो और रिटन फॉर्म में हो, वो उसको पढ़ सकते हैं। कंडक्टिंग ओरिएंटेशन डे, आप एक ओरिएंटेशन डे कंडक्ट कर सकते हैं जिसमें तमाम स्टूडेंट्स बैठेंगे, आप वहाँ पे आएंगे, स्टाफ को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अदारे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को बताएंगे और तमाम फैसिलिटीज़ जो वहाँ पे अवेलेबल हैं उस अदारे में, उसका मिशन है, उसके गोल्स हैं, ऑल यू हैव टू शेयर विद देम। वेलकमिंग डेस्क एंड एंट्रेंस, आप वेलकमिंग डेस्क बना सकते हैं। एंट्रेंस पे जब बच्चा आएगा आपके अदारे में तो वहाँ पे लोग बैठे होंगे, वो तारुफ करवाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उनके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं और उनकी जो क्यूरीज़ हैं उनको हैंडल कर सकते हैं, उनको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। अरेंजिंग कम्युनिटी टी एंड गेम्स, सेलिब्रेटिंग सोशल इवनिंग्स थ्रू प्लेस, एग्जीबिशंस, शोइंग फिल्म्स, टॉक्स बाय गेस्ट स्पीकर एंड सो ऑन। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। सो इसका मतलब क्या है? ये सर्विस, ओरिएंटेशन सर्विस ऑफ गाइडेंस, एक्चुअली आप प्रोवाइड करते हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से गाइड कर सके अपने न्यू कमर स्टूडेंट्स को। सो न्यू कमर्स वुड बी एबल टू हैव गुड स्टार्ट इन स्कूल्स फेयर। तो आप ये ओरिएंटेशन सर्विस इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो न्यू कमर्स हैं, जो नए बच्चे आपके अदारे में आ रहे हैं, उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट मिले, उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले। तो इसलिए ओरिएंटेशन सर्विस की अहमियत गाइडेंस में बहुत ही ज़रूरी है।